ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو ہمارے خاندان میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ بہت سی شادیاں ایسی تھیں جو بچوں کی چھٹیوں کا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ ہم سب کزنز مل کر ہر شادی پر خوب انجوائے کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ کب کوئی شادی آئے اور ہم سب مل کر شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے جائیں۔ انہی دنوں میرے ایک کزن کی شادی آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح ہم لوگوں نے پلان کیا کہ اب کی بار بھی ہم سب شاپنگ کے لیے ایک ساتھ شہر کی مارکیٹ میں جائیں گے۔ چونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور زمیندار لوگ تھے، اسی لیے آئے روز شہر جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ جب بھی کوئی تقریب وغیرہ ہوتی یا عید آتی تبھی ہم سب ایک ساتھ شہر جاتے تھے اور اپنی پسند کی چیزیں خرید کر لاتے تھے۔ بے شک ہم لوگ زمیندار تھے، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں پر زیادہ پابندیاں نہیں لگائی جاتی تھیں۔ حالانکہ آس پاس کے گاؤں میں لڑکیوں کو آج بھی پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن میرے ابا اور چاچا وغیرہ کے خیالات کافی مختلف تھے۔ وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ لڑکیوں کو پڑھائی کرنے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بن پائیں۔ ہمارے کچھ دور پار کے رشتہ داروں کو ابا اور چاچا کے خیالات سے اختلاف تھا اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی ابا لوگوں نے ہمیں گاؤں کے اچھے اسکول میں پڑھایا۔ گاؤں میں ابا اور چاچا نے لڑکیوں کے لیے الگ سے اسکول بنوا رکھا تھا۔ ہم سب بچپن سے وہیں پر پڑھنے کے لیے جاتی تھیں۔ ہمارا بچپن تو یوں ہی مستیاں کرتے گزر گیا۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو اماں نے کہا کہ اب گھر پر توجہ دینا شروع کر دو، جلد ہی تم لوگوں کی شادیاں کر دی جائیں گی تو گھر کے کام کاج آنا ضروری ہے۔ میں تھوڑی نٹ کھٹ سی تھی، اسی لیے لاپرواہی دکھاتی، زیادہ تر کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے نکل جاتی اور پھر جب سارے کام ہو جاتے تب واپس آتی۔ اکثر اماں مجھے ڈانٹتی کہ اگر کام نہیں سیکھو گی تو کل کو سسرال جا کر کیا کرو گی۔ میں اماں سے کہتی کہ اماں جب سسرال جاؤں گی تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو مجھے مزے کرنے دو۔ میری ایسی لاپرواہی دیکھ کر اماں پریشان رہتی اور سب سے کہتی کہ میں تو اس کے لیے حد سے زیادہ فکر مند رہتی ہوں، پتہ نہیں اس کا آگے جا کر کیا ہوگا۔ جب ابا یہ سب سنتے تو بولتے ہماری بیٹی بہت اچھی ہے، جلد ہی سب کچھ سیکھ جائے گی، اسے تنگ مت کرو۔ ابا ہمیشہ میری سائیڈ لیا کرتے تھے، میں ان کی لاڈلی تھی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ گھر بھر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں سب کی لاڈلی تھی، لیکن اماں مجھے رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم سب کے لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ چکی ہو، اب بھی اگر تم نے گھر کے کاموں پر توجہ نہ دی تو پھر دیکھنا، اپنی کزن کو دیکھو وہ کیسے پورے گھر کو سنبھالتی ہے۔ میری کزن جو مجھ سے 2 سال ہی بڑی تھی اور میری اس سے کافی اچھی دوستی تھی، لیکن وہ میری طرح لاپرواہ نہیں تھی۔ اکثر ہی مجھ سے کہتی تھی کیوں تم اپنی ماں کو ہمیشہ ناراض کرتی رہتی ہو، ان کی بات مان لیا کرو، ہمیشہ تمہارے لیے پریشان رہتی ہیں۔ مگر میں اس کی بات بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی اور کہتی کہ یہی وقت تو خوشیاں منانے کا ہے اور بے فکر رہنے کا ہے۔ اگر میری شادی ہو گئی تو پھر میرے اوپر ذمہ داری آ جائے گی، میں اس وقت تک اچھے سے جینا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے کہتی تم تو بالکل ہی پاگل ہو۔ دادی اماں نے گھر کے پچھلے حصے میں بہت سے پودے لگا رکھے تھے۔ میں اکثر ہی کسی درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتی اور کتابیں لے کر بیٹھ کر پڑھتی رہتی۔ میں کورس کی کتابیں نہیں بلکہ ناولز پڑھا کرتی تھی۔ کہانیاں پڑھ کر مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اماں کو میرے اس شوق سے بھی سخت چڑ تھی۔ وہ مجھے بولتی کہ تم کیوں فالتو میں اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہو۔ مجھے تو کھانا وغیرہ بنانا نہیں آتا تھا۔ صبح سویرے مجھے بھوک لگ جاتی تھی، میں اٹھ کر سب کا جینا حرام کرتی اور کہتی کہ مجھے ناشتہ چاہیے۔ ملازمہ صبح سویرے ہی کام کے لیے آ جاتی تھی، لیکن ناشتہ میں ہمیشہ اماں کے ہاتھ کا کرتی تھی، اسی لیے صبح صبح ان کا دروازہ بجا کر انہیں اٹھا دیتی اور کہتی تھی کہ اٹھ کر ناشتہ بنا دے۔
अम्मा मेरी इस आदत से हद से ज़्यादा परेशान थी। रोज़ाना मेरी वजह से उनकी नींद खराब होती, लेकिन मैं मज़े से नाश्ता करती और उसके बाद घर से निकल जाती और फिर पूरा दिन बाहर घूमती रहती। अक्सर ही मैं अपने गांव की ही एक सहेली के साथ नहर किनारे जाकर बैठ जाती थी और फिर कई कई घंटे बैठकर हम बातें करते रहते। एक दिन मेरी सहेली ने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी अम्मा इतना परेशान क्यों रहती हैं? हर वक्त तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती हैं। उनका कहना है कि तुम अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं हो और इस वजह से उनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। क्यों उन्हें परेशान करती हो? कोई काम काज करना सीख लो। मैंने उससे कहा, मैं क्यों काम करूं? मेरे लिए तो एक शहजादा आएगा। देखना, नहर के उस किनारे से एक शहजादा आएगा और मुझे अपने घोड़े पर बिठा कर ले जाएगा। मैं तो फिर से सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसने मेरा कांधा हिलाया और मुझे उस दुनिया से बाहर निकाल लाई और कहा कि हकीकत का सामना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। मैंने उससे कहा, देखना, एक दिन ये कहानी सच साबित हो जाएगी। ये कहकर मैं घर की तरफ निकल पड़ी। पीछे से उसने मुझे कहा, तुम तो बिल्कुल पागल हो चुकी हो। एक दिन मैं रात के वक्त छत पर बैठी कोई कहानी पढ़ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। मैं अक्सर ही छुपकर छत पर आकर बैठ जाती, हालांकि अम्मा उस वक्त छत पर जाने से मना करती थी और कहती थी कि छत पर मत जाया करो, रात को छत पर अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं। आसपास का इलाका भी काफ़ी वीरान है, इसीलिए रात को छत पर मत बैठा करो, क्या पता कोई जिन्नात यहाँ पर रहते हों। अम्मा की ऐसी बातों को मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। मैं इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी। गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। जब भी गांव में मेला लगता था तो लोग कहते थे कि उस मेले में जिन्नात भी आते हैं। एक बार गांव में एक मेला लगा था और उसमें एक लड़की गायब हो गई थी। उसके बाद से लोगों ने इस तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दी। फिर भी मेले में सब शिरकत करते थे। पहाड़ी वाली तरफ तो कोई भी नहीं जाता था। लोगों ने उससे भी एक कहानी मंसूब कर रखी थी। कोई क्या कहानी बनाता तो कोई क्या। सबसे ज़्यादा मशहूर तो ये कहानी थी कि जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता, और अगर वापस आता है तो उस पर पागलपन के दौरे पड़ने लग जाते हैं। मैं लोगों की ये बातें सुनकर सिर्फ हंस पड़ती थी, लेकिन अम्मा उन तमाम बातों को बहुत ही संजीदगी से लेती थी। इसीलिए मुझे मना करती थी कि छत पर रात के वक्त मत जाया करो। अभी जब मैं छत पर बैठकर कहानी पढ़ रही थी तो सोचा क्यों ना एक खौफनाक कहानी पढूं। मुझे वैसे भी डरावनी और खौफनाक कहानियां सुनने और पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं फौरन से स्टोर रूम में आई। छत पर बने स्टोर रूम में मैंने बहुत सी किताबें जमा कर रखी थी। वहीं से मैंने एक खौफनाक कहानी वाली किताब निकाली और फिर उसमें से एक खौफनाक किस्म की कहानी पढ़ना शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। यूं लग रहा था कि मेरे आस पास ही वो तमाम वाक़यात हो रहे हैं। कभी यूं लगता जैसे मेरे पास कोई बैठा हुआ है, कभी कैसी आवाज़ आती और कभी क्या। मैंने आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखा। वहाँ ना चांद था और ना ही तारे थे। आसमान मुझे खौफ दिला रहा था। मैंने झट से किताब बंद की और गहरे सांस लेने लगी। अगर मैंने थोड़ी देर और इस किताब को पढ़ा तो यकीनन मैं अपने हवास खो दूंगी। यही सोचकर मैंने किताब एक तरफ रखी और सोचों में गुम हो गई। वो खौफनाक वाक़यात अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे और फिर वहीं बैठे बैठे मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं दोबारा उठी तो देखा रोशनी पूरी तरह से फैल चुकी थी और नीचे से सबके उठने की आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन काफ़ी देर हो गई होगी। आज तो भूख की वजह से मेरी आंख भी नहीं खुली और मैं यहीं बैठे बैठे सो गई। मैंने आंखें मली और उठना चाहा, लेकिन मेरा पूरा जिस्म शदीद तरीन दर्द कर रहा था। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपना माथा छुआ तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। उसी वक्त अम्मा छत पर आईं और मुझे वहाँ नढाल बैठा देखकर हैरान हो गई
और कहने लगी, क्या हुआ है? आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या पूरी रात तुम यहीं पर थी? मैंने अम्मा से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बुखार की वजह से जिस्म टूट रहा है, मुझे उठने में मदद करें। अम्मा ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे उठाया। वो परेशान हो रही थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मुझे नीचे लेकर आईं तो अब्बा सामने बैठे थे। मुझे इस हाल में देखकर कहने लगे, बेटी क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? अम्मा बोली, इसने पूरी रात छत पर गुजारी है, पूरी रात छत पर बैठी रही है और अब इसे बुखार हो चुका है। मैं इसे कितना मना करती हूँ कि रात के वक्त छत पर मत जाया करे, लेकिन ये कभी भी मेरी कोई बात सुनती नहीं। अब देखें इसकी क्या हालत हो चुकी है। ये कहकर अम्मा मुझे अंदर ले आईं और बिस्तर पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही तमाम घर वाले मेरे पास आकर बैठ गए और बारी बारी मेरा हाल चाल पूछने लगे। मैंने अम्मा से कहा कि सबसे कहें कि बाहर चले जाएं, मैं आराम करना चाहती हूँ। अम्मा ने सबको बाहर भेज दिया। मुझे दवाई वगैरह खिलाई और कहा कि अब तुमने बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलना, खामोशी से यहीं पर आराम करो, बहुत लापरवाही कर ली है तुमने। अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा कि अम्मा, आपको पता है ज़्यादा देर तक मैं घर में नहीं रुक सकती और ना ही एक जगह पर बैठी रह सकती हूँ, मुझे अपनी दोस्तों से भी मिलना है। लेकिन अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि जिसने भी तुमसे मिलना हुआ आकर खुद मिल लेगी, तुम्हें घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर अगले कई दिन तक अम्मा ने मुझे घर से बाहर ना निकलने दिया। मैं जितने दिन बीमार रही, मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। कभी रात को मैं नींद से डर कर उठ जाती, यूँ लगता जैसे कोई कमरे की खिड़की बजा रहा है, और जब मैं उठकर देखती तो कोई भी ना होता। मैंने अम्मा को इस बारे में कुछ ना बताया, लेकिन जब अपनी कज़न से मैंने इसका जिक्र किया तो वो बोली, तुम्हारी अम्मा शायद बिल्कुल ठीक कहती हैं, यहाँ पर ज़रूर जिन्नात का साया है। तुम्हें किसने कहा था कि रात के वक्त तुम वहाँ जाओ? मेरे ख्याल में तो तुम्हें किसी मौलवी से दम करवा लेना चाहिए। तुम कहो तो मैं तुम्हारी अम्मा से जाकर बात करूं? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक दिया और कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना। अगर अम्मा ने सुना तो वो बहुत गुस्सा होंगी और मैं फ़िलहाल उनकी डांट नहीं सुनना चाहती। अगले कई दिन तक मैं ऐसी ही हालत में रही। सब मेरे लिए परेशान हो रहे थे। तकरीबन 1 हफ्ते बाद जाकर मैं ठीक हुई और दोबारा से अपनी पुरानी ज़िंदगी में मगन हो गई। लेकिन मैं छत पर नहीं गई। रोज़ाना अपनी दोस्त के साथ नहर किनारे जाकर बैठ जाती। एक दिन गांव की वाहिद दुकान में से किताबें खरीदने गई तो पुरानी किताबों में से मुझे एक अजीबो गरीब सा नक्शा मिला। उसके पीछे लिखा था कि जिन्नात की बस्ती। बस इतना ही लिखा हुआ था। इस इबारत को पढ़कर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं इस नक्शे की पैरवी करते हुए जिन्नात की बस्ती में जाऊं और देखूं कि वहाँ क्या हो रहा है, वो लोग कैसे रहते हैं और उनके बारे में मज़ीद बातें जानूं। जब मैंने अपनी दोस्त से इस बात का जिक्र किया तो वो मुझसे कहने लगी, हम जिन्नात की बस्ती में क्यों जाएंगे, और तुम हो के एक नक्शे के पीछे पड़ गई हो सकता है कि ये झूठा नक्शा हो, किसी ने वैसे ही रखा हो। तुम हर चीज़ को सच क्यों मान लेती हो? लेकिन मुझे यूं लग रहा था कि वो नक्शा बिल्कुल सही है और यकीनन वहाँ पर जिन्नात की बस्ती मौजूद है। अब तो मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकती थी। मैंने अपनी दोस्त को किसी न किसी तरह से मना ही लिया और कहा कि बुध की रात को हम लोग वहाँ जाएंगे, तुम तैयार रहना। उस नक्शे के मुताबिक हमें कुएं के पीछे वाली जगह से ही जाना था। वो रास्ता एक गार की तरफ जाता था। मैं आज तक उस गार में नहीं गई थी, बस उसके बारे में कहानियाँ सुन रखी थी, लेकिन जानने का तजस्सुस हमेशा रहा था। अब जबकि मौका मिल रहा था तो मैं कैसे पीछे हट सकती थी? मेरे पास तो उसका नक्शा भी मौजूद था। किसी न किसी तरह मेरी दोस्त भी राज़ी हो गई तो हम दोनों एक रात खामोशी से चुपके से घर से निकले। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हमारे हाथ में टॉर्च थी जिसकी रोशनी में हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने नक्शा खोल कर रखा था। नक्शे के मुताबिक ये जगह ज़्यादा दूर नहीं थी। चलते चलते जब हम आगे आए तो देखा सामने ही गार बना हुआ था।
मैंने अपनी दोस्त से कहा कि देखा, ये नक्शा गलत नहीं बता रहा, ये रहा वो गार। हम दोनों गार के अंदर दाखिल हो गए। गार में तो घुप अंधेरा था, टार्च की रोशनी में भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि वो जिन्नात इसी गार में रहते हैं। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि देखना, यहाँ जिन्नात आएंगे। उसी वक्त एक तरफ से सरसराहट की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक गए। मैंने अपनी टार्च फौरन से बंद कर ली और अपनी दोस्त की टॉर्च की सिमत बदल दी ताकि रोशनी हल्की रहे। उस मध्यम सी रोशनी में मुझे दीवार पर चलता एक सांप नजर आया। हम दोनों ने अपनी सांस रोक ली। सांप हमारे बहुत करीब से गुजरता हुआ गार से बाहर निकल गया तो हम दोनों ने सुकून की सांस ली। मैं आगे बढ़ने लगी तो मेरी दोस्त बोली, यार तुम बिल्कुल पागल हो रही हो जो इस वक्त इस तरफ जा रही हो। प्लीज़ वापस आ जाओ, हम कल दोपहर के वक्त चले जाएंगे। तुम्हें आखिर किस बात का तजस्सुस है? वहाँ क्यों जाना चाहती हो? उसके मुसलसल कहने पर मैंने मुड़कर उसे देखा और कहा कि बस कर दो, तुम कितनी डरपोक हो। मुझे कितना मज़ा आ रहा है और तुम हो कि अपने खौफ की वजह से मेरा मज़ा ख़राब कर रही हो। अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम वापस चली जाओ, मैं अकेली आगे चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन हाँ ये सच है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये कहकर वो मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने हाथ में थामी लाइट को इधर उधर मारा। एक कोने में मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे वहाँ पर कोई मौजूद हो, लेकिन जब हम उसके करीब गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये गारनुमा जगह बहुत ही अजीब सी थी। हम उसके अंदर बस चलते ही जा रहे थे। ये काफ़ी बड़ी जगह थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक कोने में जाकर मैं बैठ गई और लाइट बंद कर दी। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि देखना अब क्या होगा। वो खौफ की वजह से कांप रही थी। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं मायूस होने लगी। मेरी दोस्त ने कहा कि देखो यहाँ कोई भी नहीं आया, अब हम वापस चलते हैं, हमें वापस जाना चाहिए। मैंने भी कहा ठीक है, हम वापस चलते हैं। हम दोनों उठे और दोबारा से वापस जाने के लिए मुड़े। तभी हमें महसूस हुआ कि वापसी का रास्ता तो हमने खो दिया है। जिस रास्ते से हम आए थे वो तो बंद हो चुका था। मैं भी परेशान हो गई कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। एक यही रास्ता था जिसके बारे में हम जानते थे। यहाँ और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गार का धाना एक बड़े पत्थर से बंद हो चुका था। इतना बड़ा पत्थर था कि हम में से कोई उसे धक्का भी नहीं लगा सकता था। मैं अब सही मायनों में परेशान हुई थी। काश मैं अपनी दोस्त की बात मान लेती और यहाँ ना आती। मेरे तजस्सुस ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया। मैं जानती थी उस गार से निकलना इतना आसान नहीं है। उसका नक्शा भी मुझसे खो चुका था। मैंने चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि कोई हमारी मदद करो, कोई है या नहीं। लेकिन मेरी दोस्त बोली, इस वीराने में कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। काश तुम यहाँ पर आती ही नहीं तो हम इस मुसीबत में ना फंसते। आइंदा मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करूँगी। वो मुझसे नाराज़ हो गई थी। मैंने उससे कहा, हो सकता है जब हम इसके आखिर में पहुँचे तो हमें रास्ता मिल जाए। फिर एक उम्मीद पर हम दोनों आगे बढ़ना शुरू हो गई। हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। अचानक उस गार से हम बाहर निकल आए। हमारी खुशी की इंतहा न रही कि हम उस जगह से बाहर निकल आए हैं। लेकिन ये कौन सी जगह थी? ये तो एक वीरान सा जंगल था जहाँ के पेड़ पौधे बिल्कुल सूख चुके थे। यूं लगता था सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई। बंजर ज़मीन थी। मेरे घर के आसपास या हमारे गांव के आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं थी और ना ही ऐसा कोई जंगल मौजूद था। इस गार का आखिरी धाना हमें कहाँ ले आया पता नहीं। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता था भी या नहीं। मैंने एक जगह बैठकर जंगल के रास्ते का तयन करना शुरू किया, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था। थक हार कर मैं अपनी दोस्त के साथ एक दरख्त के नीचे बैठ गई। शायद नहीं बल्कि यकीनन हम लोग खो चुके थे
और अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता था। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि देखो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं ज़िद ना करती तो ऐसा ना होता। मेरी वजह से तुम भी यहाँ पर फंस कर रह गई हो। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही तुम्हारे साथ आई थी, मगर सोचो यहाँ से हम बाहर कैसे जाएंगे? क्या हम दोबारा अपने घर कभी पहुँच पाएंगे? इस बात का जवाब तो मैं भी नहीं जानती थी, इसीलिए खामोश हो गई। काफ़ी देर गुजर गई। थोड़ी देर बाद मुझे अचानक से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। आवाज़ मुसलसल हमारे करीब आती जा रही थी। हम दोनों चौकन्ना हो गईं। हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो जो कोई भी था हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान था। अब हमें वो वाज़िहा नज़र आ रहा था। हम दोनों डर गए। हम दो अकेली लड़कियां और ये जंगल, और यहाँ पर मौजूद एक लड़का, ये डराने के लिए काफ़ी था। फिर मैंने हिम्मत करके उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मैं इस जंगल में रहता हूँ और ये मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और इस जंगल में क्या लेने आई हो? मुझे काफ़ी हैरत हुई। उस वीरान और बंजर जंगल में वो कैसे रहता होगा? क्या यहाँ इंसान भी रहते हैं? मुझे तो यहाँ कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस लड़के से कहा, हम दोनों रास्ता भटक गए हैं, हमें अपने गांव जाना है, क्या तुम हमें हमारे गांव तक पहुंचा दोगे? कुछ देर वो सोचता रहा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैंने उससे पूछा तो वो बोला, तुमने अपने गले में जो हार पहन रखा है वो मुझे दे दो। मैंने बेख्तियार अपने गले में पहने हार पर निगाह दौड़ाई और उसे हाथ से छुआ। मैं वो हरगिज़ भी नहीं देना चाहती थी। मेरी दोस्त ने मेरी तरफ देखा और कहा कि इसे दे दो, अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमें यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा, और तुम जानती हो हम खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो हार मुझे बहुत अजीज था और दादी माँ ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। अब मैं उसे कैसे दे सकती थी? खैर, दिल पर पत्थर रखकर मैंने वो हार अपने गले से निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। वो हार लेकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम दोनों को इस जंगल से बाहर पहुंचा दूंगा, आगे अपने गांव तक तुम लोग खुद ही चले जाना। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। हम दोनों एहतियात से कदम उठाते उसके पीछे पीछे चलने लगे। हमें उम्मीद थी कि वो हमें वाकई जंगल से निकाल देगा, लेकिन मुझे ये शक भी पड़ रहा था कहीं वो हमें धोखा ना दे दे। सिर्फ उसने वो हार हासिल करने के लिए तो ये सब नहीं किया। मेरी दोस्त ने कहा, तुम अपने वहमों को ख़त्म कर दो, वो हमारी मदद कर रहा है, अब खामोश रहो। कुछ ऐसा मत कहना कि वो हमारी मदद से ही इनकार कर दे। मैंने बामुश्किल अपनी ज़बान को काबू में रखा, वरना मुझे तो उस लड़के में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। काफ़ी देर तक जंगल में हमें इधर उधर घुमाने के बाद वो बाहर की तरफ ले ही आया। मेरी दोस्त ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर मेरा हाथ पकड़कर तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ ही जाता था, लेकिन काफ़ी सुनसान होने की वजह से कोई भी इस तरफ का रुख नहीं करता था। मुझे हैरत तो इस बात पर हो रही थी कि इस रास्ते पर कोई भी जंगल नहीं पड़ता, तो ये जंगल यहाँ कैसे आया? मेरी दोस्त अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गई। पूरी रात मेरे दिमाग में यही सब सवालात चकराते रहे थे, लेकिन मैंने इन सब का जिक्र किसी से भी नहीं किया। अगले दिन जब सुबह कमरे से बाहर आई तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? क्या तुम पूरी रात सो नहीं सकी हो? मैंने अम्मा से कहा, कुछ नहीं, बस नींद आ रही थी। आप बस मुझे नाश्ता बना कर दे दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मा ने कहा, ठीक है, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता बना कर देती हूँ। आज तुम्हें शॉपिंग पर भी जाना है। क्या सोचा है, कौन से कपड़े लोगी? नाश्ते के बाद हम सब निकल जाएंगे। मैंने अम्मा से कहा कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अम्मा बोली, ये क्या बात हुई? वैसे तो तुम भाग भाग कर शॉपिंग के लिए जाती हो, और अब जबकि शादी का मौका है तो तुम जाने को तैयार ही नहीं हो रही।
मैंने अम्मा से कहा कि आप ही अपनी पसंद से मेरे लिए कुछ ले लेना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अम्मा कहने लगीं, उस बुखार के बाद से तो तुम्हारा रवैया ही बदल गया है। क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तुम्हें जल्द मौलवी साहब के पास लेकर जाती हूँ। मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैंने अम्मा से कहा, बस कर दें, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। आज से पहले मैं कभी भी ऐसे नहीं चिल्लाई थी, इसीलिए सब हैरत से मुंह खोले मुझे ही देख रहे थे। मैं जानती थी मैंने गलत किया है, लेकिन मैं भी क्या करती। उस दिन के बाद से मेरे रवैये में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। मैं हर वक्त उलझी उलझी सी रहती थी, किसी की बात भी ना सुनती। मुझे हर बात बुरी लगती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया और शादी की तैयारियों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। शादी के फंक्शन शुरू हुए तो मेरा ध्यान बिल्कुल ही भटक गया और मैंने भरपूर तरीके से शिरकत करना शुरू कर दी। अम्मा ने जब देखा कि मैं अपने पुराने वाले रूप में वापस आ गई हूँ तो वो भी मुतमईन हो गई। मेहंदी से लेकर बाकी सारे फंक्शंस में मैंने भरपूर हिस्सा लिया। जिस दिन मेरे कज़न की बारात थी उसी दिन मैंने अपनी पसंद का ख़रीदा हुआ ड्रेस पहना और खूब दिल लगाकर तैयार हुई। मैं सब में खूबसूरत लगना चाहती थी। जब मैं नीचे आई तो सब मेरी तारीफ़ कर रहे थे। क्योंकि घर ही की शादी थी इसीलिए सब कुछ घर के पिछले मैदान में ही रखा गया था। तमाम इंतज़ामात वहीं किए गए थे। मैं तो तैयार होकर नीचे आई तो अम्मा ने मुझसे कहा कि माशाअल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। फिर अम्मा मुझसे कहने लगी, बेटा जाओ, ऊपर छत पर फूलों का टोकरा रखा है, ले आओ। मैं तो भूल ही गई, उन्हें लाना। अब दोबारा से ऊपर नहीं जा सकती हूँ, घुटनों का दर्द है। मैंने अम्मा से कहा, परेशान मत हो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर मैं फ़ौरन से ऊपर आई, सीढ़ियों की तरफ भागी चली आई। उस दिन के वाक़े के बाद मैं अब तक छत पर नहीं गई थी और अब जब जा रही थी तो बेध्यानी में मेरा ध्यान उस वाक़े की तरफ से मुकम्मल तौर पर हट गया था। मैं छत पर आई तो देखा हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। एक तरफ टोकरा रखा था। मैंने वो उठाया और तेज़ी से मुड़कर नीचे की तरफ आने लगी। मैंने देखा ही नहीं कि मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं मुंह के बल नीचे गिरने लगी। इससे पहले कि मैं फिसल कर नीचे जाती, किसी ने एकदम से मुझे थाम लिया। कुछ पल तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और जैसे ही हवासों ने काम करना शुरू किया, मैंने फ़ौरन से नज़रें उठाकर सामने देखा तो वहाँ पर वही नौजवान खड़ा था जो उस रात हमें जंगल में मिला था। उसे अपने घर में अपने आप को थामे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं फ़ौरन से उससे अलग हुई और उससे कहा कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर की शादी में तुम्हारा क्या काम? रुको, मैं अभी सबको बुलाती हूँ। इससे पहले कि मैं चिल्लाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं आंखें फाड़े हैरत से उसे देखे जा रही थी। आखिर वो करना क्या चाहता था? मुझे उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। शायद पहली बार मैं इतना डर रही थी। उसने भी मेरी आंखों में खौफ की परछाइयाँ देख ली थी। इसीलिए कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम चिल्लाओगी नहीं? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर जब उसने मुझे छोड़ा तो कहने लगा, अभी तुम नीचे जाओ, मैं तुमसे रात को मिलने आऊँगा। ये कहकर वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मैं धड़कते दिल को संभालती नीचे आई तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। यकीनन वो शादी में शिरकत के लिए तो नहीं आया था, उसका मकसद तो कुछ और ही था। शादी के पूरे फंक्शन में मैं बार बार उसी के बारे में सोचती रही। मेरी कज़न ने मुझसे कहा कि क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? किस बात ने तुम्हें इतना उलझा रखा है? मैंने उससे कहा, कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। मैं शादी बीच में ही छोड़कर अंदर कमरे में आ गई। सब बार बार मेरे बारे में ही पूछ रहे थे, लेकिन मैं कमरा बंद करके बैठी रही। उस लड़के की बात मुझे उलझा रही थी। काफ़ी देर गुजर गई। शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने सोचा कि शायद वो लड़का झूठ बोल रहा हो। रात तो कब की हो चुकी है। मैं भी पागल हूँ जो उस लड़के की बात को सच मानकर
اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ لاشعوری طور پر تو میں اس کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ بہرحال میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے ابھی بھی اپنے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے اور نہ ہی جیولری وغیرہ اتاری تھی۔ ویسے ہی سجی سوری میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ رات کا کون سا پہر تھا میں نہیں جانتی، لیکن مجھے اپنے بہت ہی قریب سے خوشبو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے بہت ہی قریب وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے رہنے پر میں فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ اڑا اور اس سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے ویسے ہی کہا تھا کہ تم آؤ گے، لیکن تم تو واقعی میں میرے گھر میں داخل ہو چکے ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اسی وقت میری نگاہ کمرے کے دروازے پر گئی۔ میرے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا، تو اس نے کیسے کھولا؟ کھڑکی بھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ کوئی اسے اندر آ سکتا، اس لیے میرا پریشان ہونا تو بنتا ہی تھا۔ میں نے الجھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ جب تم پہلی بار اس چھت پر بیٹھی تھی تبھی میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ دراصل میں ایک جن زادہ ہوں اور اکثر ہی آس پاس گھومتا رہتا ہوں۔ اس دن تم اپنی چھت پر بیٹھ کر سو رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے بہت پسند آئی اور بہت ہی خوبصورت لگی۔ اس کے بعد کئی دن تک تم مجھے نظر نہیں آئی۔ شاید تم نے چھت پر آنا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر اچانک سے تمہیں اس جنگل میں دیکھا۔ دراصل وہ جنگل بھی جنات کا ہی تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے قسمت تمہیں کھینچ کر میرے پاس لے آئی تھی۔ تم سے تمہارا ہار میں نے اسی مقصد سے لیا تھا تاکہ تمہارے بارے میں ہمیشہ باخبر رہ سکوں، لیکن تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی اور دیکھے، صرف میں ہی تم پر حق رکھتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں اسے خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اب تم سو جاؤ۔ اس کے کہنے پر میں چپ چاپ لیٹی اور اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن میں سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی موجودگی میں کیسے سو سکتی تھی؟ لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں بند رکھی تھیں۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں فوراً سے اٹھی اور اپنا لباس تبدیل کیا، میک اپ وغیرہ صاف کیا۔ میں کس مشکل میں پڑ گئی تھی، کاش میں اس رات اس چھت پر جاتی ہی نہ۔ اگلی صبح میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا ہے، آپ مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر جائیں، ہو سکتا ہے کہ دم کروانے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اماں بولی، کیا بات ہے؟ پہلے تو تم جانے کو تیار نہیں تھی اور اب فوراً سے جا رہی ہو، چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں کہنے لگیں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم غار میں جاؤ؟ کتنی بار منع کیا ہے، اس طرح کی بے وقوفیاں مت کیا کرو، تم اس غار میں کیا لینے گئی تھی؟ میں نے اماں سے کہا، اس وقت مجھے ڈانٹے مت، بس مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر جائیں۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم اس بارے میں گھر میں کسی سے کوئی بات مت کرنا، ورنہ سب لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اماں ناشتے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لیے مولوی صاحب کے پاس آ گئیں۔ ہم نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے دم وغیرہ کیا اور کہا کہ روزانہ دم والا پانی پینا۔ میری حالت بہتر ہونے لگی اور وہ لڑکا مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ کافی وقت گزر چکا ہے اس واقعے کو۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی بھی میرے آس پاس نہیں آیا، نہ ہی مجھے اس کا احساس محسوس ہوا، لیکن اکثر ہی وہ مجھے یاد آتا ہے اور میں لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی
आपको वक्त पर मिलती रहे।